Alarming number of deaths over the last 48 hours in Maharashtra's Nanded District Hospital. 31 people have died over the last 48 hours, 7 in the last 24 hours. 16 of those who lost their lives were infants, and 71 patients are believed to be critical in that hospital. There's no official word yet on the exact causes, while it was suspected that there was a severe shortage of facilities and medicines which had led to these deaths. Chief Minister Eknath Shinde claims that there is no lack of medicines. Meanwhile, after a widespread outrage, a 3-member panel has been sent to the hospital to study the situation, and the dean of the hospital was even made to clean the dirty toilets to send out an impression of action. While all that optics played out there, there is still no clarity on the causes, and families of the victims and those who are in the hospital are demanding answers. नांदेड़ हॉस्पिटल की जो दुर्घटना है सरकार ने गंभीरता से ली हुई है और सुबह ही मैंने दोनों सेक्रेटरी को बुलाया था, उनसे प्राथमिक जानकारी ली हुई है। अस्पताल में मेडिसिन बिल्कुल पूरी तरह जितना आवश्यक है उतना वहाँ पर था, डॉक्टर और स्टाफ वहाँ पर मौजूद थे। जो घटना हुई है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, इसकी जांच होगी और कार्रवाई हो जाएगी और सरकार ने इसे गंभीरता से लिए इसलिए क्योंकि वहाँ पर हमारे जो मंत्री है और सेक्रेटरी है वहाँ पर उनको तत्काल वहाँ पर भेजा है और इसके बाद इसकी पूरी जो आवश्यक जानकारी है वो प्राप्त हो जाएगी। अशोक चौहान जी ने इसमें राजकारण करना नहीं चाहिए। वो वहाँ के लोक प्रतिनिधि हैं, उनके इलाके में ये हॉस्पिटल आता है, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। जैसा विपक्ष सत्ता की लोगों की जिम्मेदारी बनती है वैसा विपक्ष की भी जिम्मेदारी बनती है। इसमें राजकारण नहीं लाते हुए ये सभी हॉस्पिटल्स में कि आखिरी वक्त में लोग आते हैं, इसीलिए ऐसा होता है, ऐसा उनका कहना है। हमारे डॉक्टर लोगों का प्रत्येक मृत्यु की हम जांच करेंगे। सर, कैबिनेट आज है, सीएम डीसीएम को ब्रीफ किया है आपने इस मुद्दे को? किया है मैंने, तो उनकी तरफ से कुछ आपने कहा? मुझे जाने के लिए बोला है, मैं वहाँ कर जाऊंगा और डॉक्टर लोगों की एक समिति नियुक्त की जाएगी। दुखद बात है कि नांदेड़ वाली घटना में 31 लोगों की जो मौत हुई है उसमें 16 नवजात शिशुओं की मौत हुई। जवाब देने वाला कोई नहीं। क्या इन्हीं दिनों के लिए हम सरकारों को चुनते हैं, हम मंत्रियों को चुनते हैं? क्या कहें, हे ईश्वर हमारे राज्य को बचा लीजिए ईश्वर। Meanwhile, as I mentioned, the dean of that hospital was asked to clean the toilets which were dirty there. That's sending out a message of action there. However, that may not be enough to understand the real causes of what happened there, and there would need to be a thorough investigation. Meanwhile, it's not just in Nanded. About 12 patients died in the government hospital at Aurangabad in the last 24 hours, according to reports. Of these, 4 were brought dead to the hospital, according to reports. 8 patients died in the hospital. These include deaths of two newborns. There was a premature birth as well. The babies weighed about 1.3 kilogram. The dean of the hospital said that around 2,000 patients are admitted in the hospital, and around 200 of them are admitted on a daily basis, and many in serious conditions. Given their critical condition, there is no major disparity between the number of deaths to the total number of admissions, according to the dean at the Aurangabad hospital. The news of medicine shortage, he claimed, was not true. My NDTV's Pooja Bharadwaj joins us live from Nanded. Pooja, give us a sense of A, what went wrong there, and B, what's being done right now, and also the voices of the families of those who are there, who are admitted in the hospital. जी बिल्कुल, नांदेड़ के सरकारी अस्पताल में हम मौजूद हैं और देर रात भी आप देखें यहाँ पर परिजनों का जमावड़ा है, बेहद निराश। अब से कुछ देर पहले काफ़ी परिजन यहाँ पर हमसे बात भी कर रहे थे, अभी भी कुछ मौजूद हैं और कुछ पर्चियाँ हमें दिखा रहे हैं और ये बता रहे हैं किस तरह से अस्पताल की ओर से इन्हें बाहर भेजा जा रहा है दवाइयों के लिए। इनका कहना है कि 1-1 रुपये की दवाई भी ये बाहर से ही खरीद रहे हैं, इस अस्पताल में मौजूद नहीं है। रक्त जाँच हो या फिर MRI हो, ऐसे तमाम जाँच जो अस्पतालों में से बड़े अस्पतालों में होती हैं, क्योंकि अगर क्रिटिकल पेशेंट हैं तो उन्हें आप बाहर किस तरह से ले जाएंगे। ऐसे में अस्पतालों में सुविधा तो होती ही है, लेकिन यहाँ पर वो सुविधा भी नहीं मिल रही है। उन जांच के लिए भी इन्हें बाहर जाना पड़ रहा है और ऐसे में 1-1 मिनट का वो सुनहरा समय जहां पर बचाया जा सकता है किसी भी क्रिटिकल मरीज को, गंभीर मरीज को, यहाँ पर वो स्थिति गंभीर होती जा रही है। जो तंदुरुस्त मरीज हैं उनके भी। सर, आपकी क्या यहाँ पर शिकायत है? आप दिखा रहे थे कुछ जी। हम दवाखाने में आए थे तो हम चिट्ठी निकाले
तो इसमें कौन भर्ती है आपका यहाँ आपका एक बच्चा बीमार है और मैं भी बीमार हूँ, तो उस वास्ते हम चिट्ठी निकालते मेरे वास्ते, तो मेरे को ये दवा बाहर से बुला रहे, इसमें बोल रहे 1,000 रुपये दवा को लग रहे, तो इसको 3 महीने सतत लेना पड़ता करके। अब 3 महीने हम 1,000 रुपये महीना बोले तो मिनिमम 3 महीने कहाँ से लाना पैसा। हम बोल रहे कि वहाँ यहाँ इतना बड़ा दवाखाना है अशोक राज चौहान का, वो किसका होगा समझो, हमको लेना देना नहीं। हमको जो गरीब लोगों की जो सुविधा मिलने की है वो मिलने को होना। और ऐसे से एक 24 घंटे में 34 आदमी दगा के गए इसमें, तो हम भी दगाने वाले, हम भी वो सोच लिया अब हमको नई दवा मिलेंगी तो हम भी वो करने वाले हैं। हम कहाँ से लाएंगे 3-3 हज़ार रुपये 3 महीने की दवा खाने के वास्ते। हम बूढ़े आदमी हो गए, अब कहाँ से लाना। आप बाहर से दवा नहीं ले नहीं पाएंगे, नहीं तो नहीं नहीं लिया। कैसे इलाज होगा? अब क्या वो हमारी तकलीफ हम कुछ मालूम। अब क्या बोलना उसको। हाँ, पैसे नहीं है तो कहाँ से लाना, पैसे नहीं है तो कहाँ से लाना। क्या करते हैं सर? अब क्या करना, मरना पड़ेगा उसको। दवा नहीं मिली तो मरना पड़ेगा। अब इतना बड़ा दवाखाना है, कोट्यावधि रुपये का दवाखाना है, इसमें पायखाने में पानी की सुविधा नहीं। यहाँ का मंत्री है, क्या कर रहे हैं समिति वाले लोग, क्या कर रहे होंगे वो। पानी तो होना कि नहीं बाथरूम में जाने के वास्ते। अब यहाँ कम से कम 2,000-3,000 रोज की दवा लोका ले जाती, और उसमें बाथरूम में पानी सुविधा नहीं। ये आपकी तकलीफ एक बार तकलीफ दर्शकों, तो है, दवा तो मिल रही नहीं। क्योंकि ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि आप दवा खरीदने के बिल्कुल नहीं, भी इस नहीं, वक्त बिल्कुल उस नहीं, कंडीशन में नहीं, नहीं नहीं। है, तो आप इलाज ही नहीं करा इलाज पाएंगे? नहीं बस करेंगे, छोड़ेंगे आप? हाँ मर हुआ जाएंगे। क्या? आपके बच्चे को क्या हुआ है? बच्चा अब बीमार है, उसके वास्ते आप ये दवा लेने को जा रहा मैं। क्या, कौन सी बीमारी है? वो उसको कैल्शियम है, क्या हो गया, नैने में गांठी आ गई, पूजा छाता दुख रहा उसका, ब्लड लिया उसकी, वो सोनोग्राफी करे जब क्या क्या करेगी उसने। अब ये दवा बाहर से ला करके बोले उसने। जांच हुई है आपके बच्चे की? हो ठीक है, हाँ जी। Pooja, much of this is in general government hospitals and districts in several parts of the country have are in a desperate state. But is there something exceptional, something really wrong that happened over the last 24-48 hours, reporting that number of deaths? जी देखिए, इसके पीछे कुछ बहुत ही ज़रूरी कारण है, वो आपको मैं बता दूं। 2 महीने में महाराष्ट्र में बताया जा रहा है कि 300 से ज़्यादा जो डॉक्टर्स हैं उन्हें ट्रांसफ़र किया गया है, जो कि अभी तक ऐसा कभी हुआ नहीं है। डॉक्टरों का ट्रांसफ़र इस तरह से कभी हुआ नहीं। लेकिन महाराष्ट्र में आप समझें कि जिस अस्पताल में या जिस जगह पर एक मरीज़ का कनेक्शन डॉक्टर से होता है और उस वजह से उस अस्पताल में जाता है इलाज कराने के लिए, अचानक से वो डॉक्टर जहाँ पर 20 साल से 25 साल से मरीज़ों को देख रहा हो, उसका कहीं और ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये जो अचानक से तब्दीलियां बीते 2 महीने में हुई हैं, तमाम सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य व्यवस्था उसकी वजह से भी चरमराई है। दवाइयों की जो खरीदी है वो भी बीते कुछ महीने में बहुत ज़्यादा उसमें भी हम देख रहे हैं कि गड़बड़ियां हुई हैं। कई करोड़ की दवाइयां हैं जो बताया जा रहा है सरकारी अस्पतालों की तरफ से, जिसकी मांग की गई है लेकिन वो उन तक पहुंचा नहीं है। कहीं कहीं पे बताया जा रहा है कि बजट सैंक्शन को लेकर समस्या है। तो डीन की आप पहली बाइट देखें, पहला बयान देखें, तो वहाँ पर 2 चीज़ें साफ होती हैं कि दवाई की कमी अस्पतालों में और दूसरा स्टाफ की कमी। और कुछ बाद में भले ही वो बयान बदल दिए गए हों, सरकार की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि 100 से ज़्यादा दवाइयाँ अवेलेबल हैं अस्पतालों में, लेकिन यहाँ आप देखें किस तरह से ये बता रहे हैं। ये बहुत ही बड़ी बात कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम अब इलाज ही नहीं कराएंगे, हम ऐसे ही मर जाएंगे क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है दवा खरीदने के लिए। 1000 रुपये की दवा मैं कहाँ से लाऊं? तो सरकारी अस्पतालों में आप देखें आर्थिक रूप से कमज़ोर मरीज ही पहुँचते हैं इलाज के लिए, और वहाँ पर अगर दवाई ना हो, वहाँ पर अगर जाँच ना हो सके तो फिर वो जाएंगे कहाँ? क्योंकि अगर प्राइवेट अस्पताल में भी कोई मरीज होता है, वहाँ पर लाखों हज़ारों रुपये खर्च हो जाते हैं, उसके बाद उनके पास आखिरी सहारा सरकारी अस्पताल बचता है। और यहाँ पर भी अगर इस तरह से पैसे खर्च की बात हो रही है, दूसरी बात स्टाफ की बहुत ज्यादा कमी है। एक एक नर्स पर 60 से 80 मरीजों का भार है, वो भी बताया जा रहा है। मरीज के परिजन कह रहे हैं कि हमें कहा जाता है सलाइन लगा दो, हमें कहा जाता है कि वहां पर झाड़ू लगा दो। तो स्टाफ की इतनी कमी है कि सफाई भी जो परिजन है वो कर रहे हैं, दवाई जो देखभाल होती है मरीज की वो भी परिजन कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। एक स्थानीय पत्रकार हमारे साथ हैं यहाँ पे, 20 साल से नांदेड़ को समझ रहे हैं। सर, आपने एक और बात बताई थी कि जो ट्रेनी डॉक्टर्स हैं उन्हीं पर पूरी तरह से भार है, सीनियर डॉक्टर्स की कमी है। ये यहाँ पर क्या संख्या है ऐसे डॉक्टर्स की, जो सीनियर डॉक्टर्स की? देखिए, यहाँ पर है 22 डिपार्टमेंट अलग अलग, हर एक डिपार्टमेंट का एक एचओडी। इस तरह से मतलब ये 22 एचओडी हो गए जिनको हम सीनियर कह सकते हैं, मतलब प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर। उसके बाद में जो लोग हैं वो उनकी संख्या बहुत कम है।
सिर्फ एमबीबीएस वाले स्टूडेंट और जो एमडी ट्रेनी वाले जो डॉक्टर्स पर ही resident पूरा ट्रेनी डॉक्टर के ऊपर ही पूरा और भार एक एक जा ट्रेनी रहा है। डॉक्टर जैसा कि बता रहे हैं, हमें कैमरे पे तो वो बात नहीं कर सकते, लेकिन एक एक ट्रेनी डॉक्टर यहाँ पर लगातार 3 दिन तक काम कर रहे हैं, तो उनकी क्या कंडीशन है आप वो भी सोच सकते हैं। Okay, important points that you're making there. You're saying, one, there is a shortage of doctors, there is a shortage of medicines, there have been doctors' transfers which have resulted in a lot of chaos in terms of functioning. There's a shortage of hospital staff as well. You believe that all these reasons is the reason why you had such a high death rate over the last 48 hours there. We'll wait for that 3-member fact-finding report as well to come, but important that point brings focus on the state of government hospitals in Maharashtra's districts.